we'll quickly revise. 2020 paper, maybe we will have a 2-day session on that to revise. तो वो सारी चीजें हम मई मंथ में करेंगे. चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, entrepreneur is an employee and entrepreneur is free and the leader of the operation. आप इससे बेटर आप ही यही होगा कि आप इसको खुद से पढ़ें, आंसर करें. अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. How do you all prefer? Okay. Ma'am, is only one option correct? No. Ruby, can you say again? आवाज नहीं आई थी आपकी. Ma'am, I'm asking only one option is correct in all these four. So no, you can pick up more. Okay. From 2 and 4 are the correct options. Okay, 2 and 4. Let's see. So, just give me a minute. Okay, I think we have a different answer here. आवाज आ रही है ना मेरी? Okay, let's see. This we all agree. See, sometimes I have experienced that आप लोग offended feel करते हो. The idea of doing questions together, कि ये already ये series already available as you all know. तो हम क्वेश्चंस करेंगे साथ में, तो इससे क्या ना हमें याद रहेंगी चीज़ें. जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो एक्चुअली में याद रहते हैं. So there is nothing like you right or wrong answer or such. So don't feel. Second is all of us agree, है ना. First also all of us agree that is incorrect. Intrapreneur is employee, entrepreneur is the owner himself, है ना. Third statement क्या है? Entrepreneurship is the change initiative taken with a going concern by people working in the organization. तो एक तरीके से employee की बात कर रहा है. That is not correct. Usually it's a new venture. Entrepreneurship is the change initiative taken by a group of independent people. Because of the word independent, maybe we are not considering it, है ना. Entrepreneurship is within the organization. तो within the organization मतलब वो liable होते हैं entrepreneurs को answer करने के लिए. So इसकी वजह से खाली एक ही option select करेंगे. So intra is within. Fourth is correct. I said fourth. Like entrepreneur. Entrepreneurship is change initiative. इतना तक तो correct है. Taken by group of
इंडिपेंडेंट पीपल, ये इंडिपेंडेंट पीपल एक तरीके से नहीं होते ना, बिकॉज जब ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं तो इनको इनकी जो है लिमिटेशन हो जाती है, फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहे हैं ना। Entrepreneurship for entrepreneurs are not employee, no? Come again. See, I'm saying entrepreneurship is employee, ठीक है, entrepreneur is within, ये तो सही है। अब हम कह रहे हैं entrepreneurship is the change initiative taken by a group of independent people। देखिए ये तो एम्प्लॉइज होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। हाँ, इनको थोड़ा सा पावर दिए जाते हैं ताकि ये कुछ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर सके, और ये अगर ऑर्गेनाइजेशन से अलग निकल के काम करेंगे तो ये भी एंटरप्रेन्योर्स बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आज ये इंडिपेंडेंट नहीं है। समझा अभी? ठीक है, ओके। So you can mute yourself. Okay. So intra is within this entire process of employees taking up some entrepreneurial ventures within the organization। जब वो within the organization रख के, मान लीजिए इन्होंने कोई R&D करके कुछ नया इनोवेशन निकाला या कुछ नई चीजें नोवेल आइडियाज लेकर के आए, तो इनसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि आप सबसे पहले इसके बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आपको सैलरीज पे कर रही है। So this question may not be, so these are the kind of questions which you don't know, so that is okay, because यहाँ पे पूछे हैं which national institute established a center of research in entrepreneurship education and development। This is CREED, with an objective to broaden frontier of entrepreneurship research। Even IIM Bangalore is one of such IIMs which is very famous for entrepreneurial studies। And you just info piece of information, we as JRF people are not eligible to apply for entrepreneurship। मेरा बहुत मन था कि मैं entrepreneurial जो है चीज़ों में PhD करूँ, so that's why I'm keeping on hold, because JRF score is not accepted। You can go with a GRE score or a GMAT score per se, and they prefer engineers with a technical background taking more of entrepreneurial activities। So see, entrepreneur has to be a mix of all। आप एक टेक्निकल पीपल रहेंगे, देयर विल बी समवन फ्रॉम मैनेजमेंट हु कैन एग्जीक्यूट वेल, बट यूजुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा जाता है कि समवन विद अ टेक्निकल स्किल इज वैल्यूड मोर। मे नॉट, आई personally do not agree। Like for example, I face it a lot when I say people that we have created an app, so they think that they are the developers who have created the app and they are the ones done everything। Understand, execution is the job of management। जो अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं करते, आप किसी चीज का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाते, प्लानिंग ही नहीं करते, तो पहले मैनेजमेंट आता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑलवेज यू कैन हैव इट फ्रॉम आउटसाइड, बट अगर आप एंटरप्रेन्योरियल वेंचर टेकअप करने का सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो यू शुड हैव अ मिक्स ऑफ बोथ। टेक्निकल लोग भी होने चाहिए आपके टीम में, और मैनेजमेंट के भी बंदे उतने ही जरूरी है। ठीक है, सो आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग द आंसर। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। थोड़ी सी बातें इसके ऊपर जरूर कर लेते हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो अगर दोबारा से यही ऑप्शन आए। क्रीड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर 1 में इस तरीके के फुल फॉर्म आपको हायर एजुकेशन से आ सकते हैं। सो सेंटर फॉर रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। सो EDI क्या है? Entrepreneurship Development Institute of India, reaffirming the findings of research, advocate a positive approach to work। Entrepreneurship Development Institute of India, set up in year 1997, and Center for Research in Entrepreneurial Education Development was set up as a crucial link between theory and practice। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आज के दिन में भी नहीं है, केवल गिने चुने जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करवाते हैं बाकायदा। So because it requires quite a niche approach, it's not something we can learn in classroom। So
ये जो बॉडी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक तरीके का ब्रिज करने का गैप को कम करने की कोशिश करती है. देयर इज अ ह्यूज नीड एक्चुअली. व्हाट वी स्टडी इन क्लासरूम अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप. इनफैक्ट इस यूनिट पे भी व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट, नॉट मच कंटेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन. So you have to refer books. I can share you the book का name. It's a foreign author's book. ड्रीम टेक पब्लिकेशन की बुक है जो मैंने प्राइमरली रेफर की है. सो फॉर सम सब्जेक्ट यस, इंटरनेट डेटा यू विल गेट डिफरेंट थिंग्स. सो यू शुड पिक अप समटाइम्स गुड बुक्स ऑल्सो. इनफैक्ट मतलब अगर आप लोग मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको मैनेजमेंट की अच्छी किताबें ज़रूर पढ़नी होगी. किताबों में जो नॉलेज आपको मिलेगा एज इन टर्म्स ऑफ थियरी, वो आप अप्लाई कर पा सकते हैं. आप स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स के नहीं अवेलेबल हैं, सो यू माइट हैव टू गो फॉर फॉरेन. बट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बुक्स आप पढ़ते रहो, और जब भी आप अपना कंटेंट बनाओ तो बुक्स को ही रेफर करके बनाओ, क्योंकि इंटरनेट पे अभी क्या ना, बहुत ज़्यादा डेटा क्लटर हो चुका है. तो यू गेट थिंग्स बट यू डोंट नो व्हाट टू पिक अप. दैट इज द डायलेमा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस. तो कमिंग बैक, इस EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? Supports research in entrepreneurship, catalyst the process of networking between researchers and institute in the sphere of entrepreneurship, encourages research. So more to do with research bit of it. हो सकता है कि इसके नाम से या इसके ऑब्जेक्टिव से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो. इंपॉर्टेंट बिट है ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक एग्जाम था पर्टिकुलरली जून 2019 में, जिसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप से पूछ दिए गए थे. यूजुअल ट्रेंड रहा है कि इस यूनिट से थोड़ा कम वेटेज है, फिर भी ये अटेम्प्ट में आपको देखिए 4-5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ट्राई योरसेल्फ, देन वी कैन डिस्कस. In fact, I will discuss this question, little difficult to answer. The scheme which has been launched by MSME to access the capabilities of credit worthiness of micro and small enterprises, MSCs, is called. तो बहुत सारे स्कीम है. इसका जो राइट आंसर है वो है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम. सो couple of schemes we will talk about. Performance and credit rating scheme for micro and small enterprises. Also I will be giving you a list. I'm working on it. एक लिस्ट मैं आपको दूंगी. Recent initiatives of MSMEs. MSMEs initiatives ये थोड़ा सा निश हो जाता है, सिर्फ मैनेजमेंट वालों को यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रेडिट रेटिंग स्कीम क्या है. यूजुअली आप एक थर्ड पार्टी का ओपिनियन लेते हो कि कंपनी कैसा कर रही है, जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस है वो कैसा कर रही है. इसके अलावा NSIC का नाम आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी है फॉर दिस स्कीम, इस स्कीम को परफॉर्म करने के लिए. एक और स्कीम था ऑप्शन में विच वाज ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है MSMEs का. नाम से हमें समझ में आता है यहाँ पे, जब आप फर्स्ट टाइम चीज़ें बनाएं तो फर्स्ट टाइम राइट पे ये फोकस करता है. ठीक है. और इन्वायरमेंटल क्या है, फर्स्ट जीरो डिफेक्ट एंड देन सेकेंड जीरो इफेक्ट. We should manufacture goods in such a way that they carry zero defect and our exported goods are never returned to us. First time right वाली approaches है यहाँ पे. We should manufacture goods with zero effect, that they should not have any effect, negative effect on the environment. So यहाँ से भी questions आपको बन सकते हैं. फिर ZED certification scheme, zero defect, zero effect practices in manufacturing processes to ensure continuous improvement and supporting the Make in India initiative. बेनिफिट्स क्या है, 0.5% कंसेशन लोन पे मिल जाता है, 50% प्रोसेसिंग फ़ी कम हो जाती है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको लोन मिलता है. अमाउंट एक बार देख लेना.
फिर एक और क्वेश्चन आया था 2019 का ही है ये, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्कीम टू डेवलप इकोसिस्टम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर बिट्स। देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओ तो दैट इज ओके। मैनेजमेंट का पेपर आता थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। इनफैक्ट दिस शिफ्ट तक के एंटरप्रेन्योरशिप से इससे पहले के शिफ्ट व्हेन वी वर एनालाइजिंग तो देख रहे थे कि हर शिफ्ट में हार्डली 2 क्वेश्चंस और वो भी क्वेश्चंस ऐसे आते थे, हम बाद के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आई मीन पहले के, तो आप देखोगे कि उसको आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हो फ्रॉम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, बट दिस रिक्वायर्स डीप नॉलेज। सो इवन इफ यू डोंट डू इट, टिप फॉर एग्जाम इज, आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो अंडरस्टैंड से वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू डू करंट अफेयर बिट, क्योंकि ये इतना करंट नहीं होता है कि आप न्यूज़ में देखो। इसको समझ लेते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। थोड़ी सी बातें सारे जो है टॉपिक्स पे कर लेते हैं। सो नीति आयोग का ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया था। शी एम्पावर्स इंडिया हैशटैग। देखिए 2018 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और क्वेश्चन बना है इसका कब, जून 2019 में। सो यू कैन नॉट बी सो सर्टेन अबाउट दीज स्कीम्स अनटिल अनलेस यू रिमेंबर रीडिंग इट, बट अभी से आप इसको प्रैक्टिस बना लीजिए कि एनीथिंग विथ रिगार्ड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप इन न्यूज़ यू हैव टू रीड इट, बिकॉज इस बिट से क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्या कहता है ये स्कीम? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एम्स एट बिल्डिंग vibrant ecosystem for women across India to help realize their entrepreneurial aspirations, scale and innovative initiatives, chalk out sustainable long-term strategies for their business. So ये एक प्रोग्राम था लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर इनफैक्ट। नाउ you can see they are fostering and encouraging women entrepreneurs. So likewise you'll see lot of buzz around it, like road show programs launch hote hain. Then something which you should be aware is these 3 things: कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति एंड ज्ञान शक्ति। इसके ऊपर थोड़ी सी और बातें करेंगे। सो की हाइलाइट्स इसके हैं ये तीनों चीजें, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति एंड ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है? इनिशियल motivating aspiring entrepreneurs to start their enterprise. Gyan Shakti is providing knowledge and ecosystem support to women entrepreneurs, and Karma Shakti is providing hands-on support. So जैसे हमने मुद्रा योजना, if you remember, शिशु, किशोर और तरुण 3 स्टेजेस पे जो है फंडिंग करते हैं मुद्रा योजना के तहत। तो इसी तरीके से ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये एक चीज़ नीति आयोग द्वारा स्पॉन्सर्ड है और यहाँ पर इसके 3 पिलर्स है। यहाँ से भी हो सकता है कि आपको आगे आके किसी एग्जाम में क्वेश्चंस बने। तो ठीक है, मुद्रा ने आपने पढ़ा है तो चलिए मुद्रा पे एक और क्वेश्चन करते हैं। मुद्रा से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुद्रा, जरूर पढ़ के जाइएगा। ट्राई योरसेल्फ। Let's see the answer. Both the statements 1 and 2 are correct. Let's read it out together. Mudra is a NBFC supporting development scheme of micro enterprise in the country. It provides refinance support to bank MFIs for having loan requirement up to 10 lakhs. So एक बार दिया आप चेक कर लीजिएगा where you went wrong. शिशु किशोर तरुण तो अभी हमने बातें की और शिशु किशोर तरुण से ही क्वेश्चन बना है पहले भी। मैम हाँ जी मैम, जब हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास में एक ये क्वेश्चन हमने किया था, तब तो स्टेटमेंट सेकंड हमने वो चूज की थी। क्या ये क्वेश्चन किया था? हाँ जी मैम। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? लोन रिक्वायरमेंट अप टू 10 lakhs। ओके नहीं नहीं, तो फिर इसका लोन रिक्वायरमेंट एक्चुअली अप टू 50 lakhs है। कोलैटरल लगता है अगर 10 लाख से ज़्यादा का लोन रहता है तो सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो
गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ही खाली सही है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। ये अमाउंट जो है इसको बढ़ाने का एक्चुअली प्रपोज किया गया है काफ़ी टाइम से, लेकिन ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए नहीं है अभी तक के। तो इसको प्रपोज किया गया है कि शिशु को जो है बढ़ा करके जो है 1 लाख कर दिया जाए, और टोटल अमाउंट बढ़ा करके यहाँ पे 1 मिनट शिशु में 50,000 तक के, 50,000 से 5 लाख तक में अभी किशोर में देते हैं, और तरुण में 10 लाख तक के ही देते हैं। ओके, मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी तो फिर लास्ट क्लास में गड़बड़ किया होगा, तभी यहाँ से इट इज़ अ लोन अमाउंट। तो लेट मी करेक्ट इट, यही सही है, बोथ ऑप्शंस 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब है एक सीका से क्वेश्चन आया, सीका पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखो सीका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज प्रोविजंस एक्ट 1985 defines a sick industrial unit as one that had existed for at least 5 years। तो ये एक क्राइटेरिया हो जाता है, कम से कम 5 साल से वो बिजनेस चल रहा है, और incurred accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth at the end of any financial year। 5 साल में किसी भी साल में उसका जो इंटायर नेटवर्थ है उससे उसने लॉसेस या तो इक्वल टू या तो उससे ज़्यादा इनकर किया है। इसके अलग अलग प्रोविजंस है। सीका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 was repealed by Sick Industrial Companies Special Provisions Act 2003। So new act में क्या है? New act diluted some of the provisions of SICA and plugged certain loopholes। So it aimed not only to combat industrial sickness but also to reduce the same by ensuring that companies do not view the declaration of sickness as a escapist route from legal provisions। So basically major changes ये नए वाले सीका एक्ट 2003 में क्या लाया गया, यहाँ पे लेजिस्लेशन लेके आया गया। देखो ये पहले वाले में हमने देखा कि सीका मतलब इसमें क्या था कि कोई भी यूनिट अगर 5 साल से, पिछले 5 साल से सिक है, उसके नेटवर्क जो है फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस में है, तो वो सिक यूनिट कंसिडर हो जाएगी। सो इसके ही लूप होल्स को घटाने के लिए लाया गया BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड एपलेट अथॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। फुल फॉर्म का नोट लेना, मैनेजमेंट में आते हैं AAIFR। सो अपना जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है एंड नेशनल लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल है, इसको बना दिया गया ये BIFR और AAIFR को रिजॉल्व करके। सो ये कंपनीज के भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखती है अभी, और ये जो सिक यूनिट्स है इसका भी जो है रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखती है आपकी NCLT एंड NCLAT। कंपनी लॉ में भी आप इसको, कैसे आप लोग को लॉ नहीं पढ़ना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट। now we have, earlier we had these BIFR, AAIFR, now we have NCLT and NCLAT। so NCLT क्या है, बेसिकली एक तरीके से आप इसको, इसकी तुलना कोर्ट से कर सकते हैं। अगर कोई हमारे सिविल डिस्प्यूट या क्रिमिनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम कोर्ट के पास जाते हैं, तो इसी तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है बनाया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013। NCLT has jurisdiction to hear matter with respect to the management of the company, mergers, amalgamation, revival, rehabilitation of companies। So NCLT has been further bolstered by insolvency and bankruptcy code, other things that provide corporate insolvency process initiated before NCLT। तो अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है तो दे हैव टू सॉर्ट टू NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
Here's a data which says that within 180 days of commencement of the bankruptcy code, that is 1st December 2016. So एक नया कोड लाया गया, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It says, with the bankruptcy code coming into effect, all the proceedings pending before BIFR and AIFR still abated. However, entity who has been referenced as has abated may initiate fresh proceedings before NCLT under bankruptcy code that offer corporate resolution within 180 days of the commencement of the bankruptcy code. 2016 में कहता है एक नया bankruptcy code लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और इससे पहले के जो दो बॉडीज थे BIFR और AIFR जिनको क्लब करके बनाए गए हमारे NCLT, सो उसके अंदर जो भी केसेस चल रही थी दैट वाज अबेटेड और उनको वापस से फ्रेश अपील करनी होगी, फ्रेश प्रोसीडिंग करनी होगी NCLT के इस कोड के तहत। खैर, सो यहाँ पर क्वेश्चन था, सीका was enacted to address a chronic problem of industrial sickness in the Indian economy. ठीक है, ये 1985 का एक्ट था, तो उस टाइम पे yes, Indian economy had so many industrial sickness. Sika defined a sick industrial unit as that had existed for at least 3 years. तो ये 3 का क्या हो जाएगा, 5 साल के लिए कम से कम एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए था, and had incurred accumulated losses equal to entire net worth. So देखो, ये बिल्कुल डेफिनेशन से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन पूछ दिया है। सो यहाँ पे क्या है, आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी। सो देखो, दिसंबर 2018 में भी सिमिलर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर से क्वेश्चन आया था। दिस इज अ इजी वन, यू कैन ट्राई। Well, statement 1 is correct. Yes, because this risk taking, एक मिनट, an entrepreneur is a person within a large corporation that who takes direct responsibility for turning an idea into profitable finished product through assertive risk taking and innovation. Entrepreneur refers to employee initiative in an organization to undertake something. दिया, आपका क्या आंसर है? टू, 1. Both the statements are correct, you mean? I think this is a tricky statement. Need to recheck this answer. एक बार होल्ड पे रखिए इसको, मैं बताती हूँ इसका आंसर। Okay. A situation where prosperity of one sector leads to neglect of another sector. So देखिए, इसको कहते हैं आपका डच डिजीज फेनोमेना। देखिए, मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और ये टॉपिक
में से अनहर्ड चीज़ें ज़्यादा आती है। तो जितना से ज़्यादा हो सके हमें इनका नॉलेज लेना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 10 डिजीज पे, क्योंकि अगर ये दोबारा से आया तो वी शुड बी एबल टू डू इट. This refers to phenomena wherein countries that are rich in natural resources witness uneven growth across all sectors. So, according to this thesis, when resource rich countries export their resources to the rest of the world, it causes exchange rate of their currency to appreciate significantly, and this in turn affects all the sectors in the country by discouraging their exports while encouraging import of cheaper alternative. तो कहता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी में जी रहे, एक कंट्री मान लीजिए प्रोस्परस है, अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है तो क्या हो जाता है कि उस कंट्री की करेंसी जो है वो भागने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब देश में जितनी भी सेक्टर है उस पर सर्कुलर इफेक्ट गिरता है, हर एक चीज़ें देश में महंगी हो जाती है और इम्पोर्ट करना ही सस्ता हो जाता है. तो ये है आपका डच डिजीज फिनोमेना, विच इज़ जहाँ पर कंट्रीज जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, दे आर uneven growth happens because why resource rich countries in the export their resources to the rest of the world, it causes exchange rate of the currency to appreciate significantly, and all the sectors are affected, so they discourage their exports and encourage import of the cheaper alternative. import करना उनके लिए सस्ता हो जाता है. फर्स्ट टाइम ये फिनोमेना दिया था इकोनॉमिस्ट पीटर नियरी मैक्स हॉर्डन. So management papers are notorious for asking some pages of the book of some books they will pick up and ask these kind of names. So again बहुत ज़्यादा डीप में इसके नहीं जा सकते हैं, बट जितना हो सके, जितना आप याद रख सकते हैं उतना के आप नोट ले सकते हैं. जैसे अभी ये नाम हमने साथ में पढ़ा, पीटर नियरी, मैक्स कॉर्डन. सो समवेयर व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द एग्जाम, और अगर यहीं से अगर क्वेश्चन बन के आ गया कि डच डिजीज फिनोमेना या मैच द कॉलम में ये जो इकोनॉमिस्ट के नाम हो गए, मैनेजमेंट गुरुज के नाम हो गए, ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं मैनेजमेंट पेपर में. कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी आए हैं नाम से रिलेटेड. ठीक है, तो देखिए ये 2018 में भी आया है सीका से. ट्राई आंसरिंग. Incipient is at the start basically. So both are correct here. पहला था yes, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ सिकनेस. शुरुआत में ही पता चल जाता है कि इंडस्ट्री जो है सही नहीं चल रही है, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, बच सकते हैं. और ये इंडस्ट्रियल सिकनेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है
5 से 7 साल लगता है कंपनी की हेल्थ को खराब होने के लिए। हेल्थ बियॉन्ड क्योर अगर उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, देखिए अगर क्योर किया जा सकता है तो हम रिवाइवल के लिए टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं है देन वी विल डिक्लेयर इट एज सिक यूनिट। ओके, सो दिस इज अ लवली क्वेश्चन, इफ यू ऑल रिकॉल, नहीं तो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। B3C4 B3 B क्या है? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, reluctant to change. Okay, C, imitating entrepreneurs, skeptical about changing to be made in the organization. Is it? Let's see. इमिटेटिंग कब करते हैं? देखिए इमिटेटिंग तो आप एक शॉर्ट समझ सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको रिकॉल करे, इमिटेटिंग मतलब आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, आप R&D पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप कॉपी कर लोगे। इमिटेशन ज्वेलरी तो टर्म आप सबने सुना होगा। सो फेबियन क्या है? फेबियन जो है कि सबसे ज़्यादा Fabians are characterized by great caution and skepticism to experiment any change in the enterprise. They usually do not take any new challenge. तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको लगता है कि अब नहीं करेंगे तो हमारी नैया डूब जाने वाली है, तब तक ये खुद को बदलते नहीं है, बट बदलते हैं। सो दैट इज फेबियन। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव वाले होते हैं। तो एक बार वापस कनेक्ट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे।